everyone. So today we will going to start a new chapter, and the name of the chapter is agriculture. So in this chapter we will going to know about the different types of techniques that we use by the people of the villages in agriculture. Chapter 14, agriculture, learning objectives. By the end of this lesson you will learn agriculture, types of agriculture, and cereals or food grains. So in this chapter we will going to cover the topic about agriculture के बारे में, कितने types of agriculture होते हैं, and cereals or food grains जो हम grow करते हैं. Or before starting the chapter, you have to do a small activity, build up. Can you answer the following questions in just a particular word? Number 1, what is the main occupation of the people in villages? That is farming. What is the term used for cultivating the land and growing crops? That is agriculture. What is the main source of income for about 3/4 of India's population who live in villages? That is agriculture. Now let's start. Agriculture. Agriculture is the science and practice of growing crops by the cultivation of the land. What is agriculture? Agriculture is the science and practice. एक साइंस है, प्रैक्टिस है कि कैसे क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है लैंड कल्टीवेशन करके. फैक्ट ट्रेजर, केरला इज नोन एज द लैंड ऑफ स्पाइसेस. वहाँ मसाले बनते हैं, तो केरला को लैंड ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है. इट इज़ दी बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. एग्रीकल्चर इंडिया की इकोनॉमी की बैकबोन है. इट कंप्राइजेज एक्टिविटीज लाइक ग्रोइंग पल्सेस, फूड ग्रेन्स, शुगर केन, कॉटन, जूट, ऑयल सीड्स, स्पाइसेस एक्सेट्रा. तो इसमें सारी एक्टिविटीज ये हैं कि पल्सेस को ग्रो करना, फूड ग्रेन्स को ग्रो करना, शुगर केन, कॉटन, जूट, सब ये ग्रो होता है. Apart from this, it also comprises allied activities like poultry farming and animal husbandry, dairy farming, etc. तो इसके अलावा it also इसमें बहुत सारी other activities भी है, जैसे कि poultry farming है, animal husbandry, dairy farming, etc. In other words, agriculture refers to the production of food and goods through farming. So if we talk about agriculture, in other words, so it refers to the कि अनाज पैदा करना. It's production of food and goods through farming. Types of agriculture. There are many types of agriculture as on the basis of seasons. अब season के base पर agriculture है. On the basis of seasons, crops are classified as rabi and kharif crops. First is kharif crops. Seeds are sown in June with the arrival of monsoon and crops are harvested in November. अब जून के महीने में बीजों को बोया जाता है जब मॉनसून आने की शुरुआत होती है, और क्रॉप्स नवंबर में हार्वेस्ट हो जाती है, तैयार हो जाती है फसल. Major kharif crops are rice, maize, cotton, millets, groundnuts, and jute. Major crops हैं. Then comes the rabi crops. Seeds are sown in October, November, and the crops are harvested in March, April. तो इसमें जो राबी क्रॉप्स होती हैं वो अक्टूबर नवंबर में इनको सो किया जाता है, और क्रॉप्स फसलें तैयार हो जाती हैं मार्च अप्रैल. मेजर राबी क्रॉप्स आर व्हीट, ज्वार, सोरगम, ऑयल सीड्स एंड टोबैको. ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स. अब नीड्स के बेसिस पर कौन सी होती है? एक होती है ग्रेन फार्मिंग. द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स व्हिच इज लेटर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द सीजन. वो प्रोसेस ऑफ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को एक साथ जो है प्लांट करना, और सीजन के एंड में वो हार्वेस्ट हो जाती है. द सीड्स ऑफ दीज क्रॉप्स आर लेटर रिफाइंड फॉर यूज. फिर जो ये क्रॉप्स ग्रो हो जाती है उसके बाद जो इनके बाद में सूखने के बाद जो इनके बीज बचते हैं उनको आगे यूज के लिए रखा जाता है. Grains are basically the seeds of the crops planted. जो crops plant की जाती हैं उनके seeds को grains कहा जाता है. In this farming, people from the same family can work on a small piece of land. तो इस farming में जो same family के लोग हैं वो एक साथ एक ही land पर काम करते हैं. Grain farming is done to provide food to animals and human beings. तो grain farming इसलिए करी जाती है ताकि animals को भी food provide हो सके और हमें भी. Then comes shifting cultivation. Shifting cultivation is shifted from one place to another. Shifting cultivation means एक जगह से दूसरी जगह पर shift करना. In this cultivation, farmers use a small piece of land for a temporary time and then leave it on abandon until and unless the land gets its fertility back naturally. एक लैंड को कुछ टाइम पीरियड के लिए यूज करते हैं, उस पर क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उसके बाद उसे कुछ टाइम के लिए फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं बिना क्रॉप्स को ग्रो किए, ताकि वो लैंड फर्टाइल हो सके, ठीक हो सके नेचुरली. Gardening and fruit farming. Fruits and vegetables are produced on a large scale from a commercial point of view. अगर हम commercial point of view से देखें तो fruits and vegetables को बहुत ही large scale पर produce किया जाता है.
It requires fewer resources and laborers as compared to grain farming and shifting cultivation. तो उसको बहुत ही कम रिसोर्सेज और लेबर की जरूरत पड़ती है एज कम्पेयर टू से शिफ्टिंग कल्टीवेशन और ग्रेन फार्मिंग में पड़ती। योर वाइज Why is it so that we can live without food for a few days but not without water? हम पानी के बिना क्यों नहीं रह सकते जबकि खाने के बिना हम कुछ दिन रह सकते हैं। Next come pastoral nomadism. This is the kind of agriculture that is based on the herding of domesticated animals. Pastoral nomadism होता है, ये एग्रीकल्चर बेस्ड होता है आपका domesticated animals को herding of उनको कैटल रियरिंग हो गया, herding of domesticated animals में आपके काऊ हो सकती है, बफेलो हो सकती है, उनको रखना। Then comes dairy farming. Dairy farming is related to the prolonged production of milk. This procedure is done for producing products like sweets, chocolates, curd, cheese and other dairy products. Dairy farming हम यूज़ करते हैं मिल्क की प्रोडक्शन के लिए। मिल्क से ही बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, दही बनता है, मलाई बनती है, मक्खन बनता है, स्वीट्स बनती हैं, तो उन सब के लिए प्रोडक्ट्स के लिए। सीरियल्स और फूड ग्रेन्स। Major cereals grown in our country are rice, wheat, maize, millets, pulses, spices, beverages, oilseeds, fruits and vegetables. जो major cereals हमारी country में grow होते हैं वो होते हैं rice, wheat, maize, millets, beverages. Number one, rice and wheat. Rice is grown in Assam, West Bengal, Andhra Pradesh, Telangana, Bihar, Jharkhand, Odisha, Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Punjab, Kerala and Maharashtra. Rice grow होता है असम में, West Bengal, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन जगहों पर राइस सबसे ज़्यादा ग्रो होता है। राइस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है इंडिया में। वीट इज़ ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। वीट कहाँ पे ग्रो होती है? पंजाब, हरियाणा, यूपी। वीट इज़ द स्टेपल फूड इन नॉर्दर्न इंडिया, और नॉर्दर्न इंडिया का, नॉर्थ साइड का बहुत ही फेमस और मोस्ट ईटेबल है, वो रिच है, सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पर वीट ही ग्रो होता है और खाते भी। Millets such as ज्वार, बाजरा, रागी are grown in parts of मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु जैसी जगहों पर मिलेट्स, ज्वार, बाजरा ग्रो होता है। पल्सेस, ग्राम, मूंग, अरहर एंड मसूर आर पल्सेस। दे आर रिच इन प्रोटीन्स में, रिच प्रोटीन में होती है, रिच दालें में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, एंड दे आर ग्रोन इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इट। स्पाइसेस, मसाले। स्पाइसेस लेंड फ्लेवर एंड कलर टू आवर फूड। तो हमारे खानों में, खाने जो हम बनाते हैं, अगर उसमें मसाले नहीं होते तो खाना फीका लगता है। तो मसाले बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमारे खाने में फ्लेवर और टेस्ट डालने के लिए। कार्डमम, नटमेग एंड पेपर, दे आर सम कॉमन स्पाइसेस। दे आर वाइडली ग्रोन इन कर्नाटक एंड केरला जैसी जगहों पर ज़्यादातर ग्रो होते हैं। देन कम्स बेवरेजेस। बेवरेजेस होती हैं आपके लिक्विड, जैसे कि कॉफ़ी और टी। कॉफ़ी एंड कोको आर बेवरेजेस। दे आर ग्रोन इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। इस जगहों पर ये बेवरेजेस, कॉफ़ी और कोको है, ये ज़्यादातर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में मिलती हैं, ग्रो होती है। टी इज़ द मोस्ट पॉपुलर बेवरेज। टी बहुत फेमस है, टी तो हर जगह के लोग पीते हैं। इट इज़ ग्रोन इन असम, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका। ऑयल सीड्स, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, linseed and sesame are oil seeds. ये सारे ऑयल सीड्स होते हैं। मस्टर्ड सीड्स, ग्राउंडनट, दे आर यूज टू प्रोड्यूस ऑयल। ये ऑयल के लिए, प्रोड्यूस के लिए यूज होती है। मस्टर्ड के सीड्स का ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल। ऑयल सीड्स आर ग्रोन इन पंजाब, उड़ीसा एंड गुजरात में ऑयल सीड्स ग्रो होते हैं। योर वाइज, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, टी का प्रोड्यूसर। फाइबर्स, जूट इज ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, असम एंड बिहार। जूट कहाँ पे ग्रो होती है? वेस्ट बंगाल, असम एंड बिहार। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग गनी बैग्स, कारपेट्स एक्सेट्रा। इट इज कॉल्ड द गोल्डन फाइबर। जूट जो होता है वेस्ट बंगाल में ग्रो होता है, असम में होता है, बिहार में होता है। इससे गनी बैग्स बनते हैं, कारपेट बनाए जाते हैं। इसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर टू। शुगर केन इज यूज फॉर मेकिंग शुगर एंड जैगरी। शुगर केन, गन्ना, गन्ना हम यूज करते हैं, उसकी चीनी बनती है, गुड़ बनता है। इट इज ग्रोन इन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार एंड तमिलनाडु, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो होता है। कॉटन इज एन इम्पॉर्टेंट फाइबर। कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ यूज टू मेक क्लॉथ, कपड़े बनाने के काम आता है। कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं हम गर्मियों में। इट इज़ कॉल्ड किंग ऑफ फाइबर्स, फाइबर्स का किंग कहा जाता है इसको। कॉटन इज ग्रोन इन गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन नियरली एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री के लगभग हर हिस्से में फ्रूट्स वेजिटेबल ग्रो होते हैं। हर स्टेट में कोई ना कोई फ्रूट होता है। मैंगोज आर ग्रोन इन उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। मुंबई में भी होता है।
Apples are grown in Jammu Kashmir and Himachal Pradesh, ठंडी जगहों पर. Production of crops has increased due to better quality seeds, fertilizers and the use of machines like हार्वेस्टर्स एंड ट्रैक्टर्स. तो ट्रैक्टर्स हार्वेस्टर्स की हेल्प से, मशीन्स की हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है फ्रूट्स वगैरह का. इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन बाय फॉलोइंग द साइंटिफिक मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज द ग्रीन रिवोल्यूशन. तो हम जो फ्रूट्स का, खाने का, अनाज का जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, फार्मिंग टेक्निक्स अच्छी अच्छी आ गई हैं. पहले ट्रैक्टर्स नहीं हुआ करते थे, बहुत अच्छे ट्रैक्टर्स हैं, वो प्लोइंग मशीन से, सब चीज़ें इतनी अच्छी हो गई हैं जिसकी वजह से हमारे जो फूड को ग्रो करने का, फूड की प्रोडक्शन बढ़ रही है. तो उस प्रोसेस को हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, उस मेथड्स जो हम यूज़ करते हैं. दिस इज द टेबल शोइंग क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. आंध्र प्रदेश में फेमस जो क्रॉप्स हैं, राइस, कॉटन, शुगर केन, टोबैको, चिलीज, जूट, फ्रूट्स. अरुणाचल प्रदेश, राइस, मिलेट्स, ऑरेंजेस. असम, राइस, जूट, टी, कॉटन. बिहार, राइस, मेज, जूट, कॉटन, शुगर केन, टोबैको. छत्तीसगढ़, राइस, व्हीट, मिलेट्स. गोवा, राइस, कॉटन, कैश्यू नट्स. गुजरात, कॉटन, व्हीट, ग्राउंडनट, शुगर केन. हरियाणा, व्हीट, ग्रेन्स, राइस, शुगर केन, ज्वार, कॉटन. हिमाचल प्रदेश, एप्पल्स, व्हीट, मेज, राइस. झारखंड, रागी, व्हीट, मिलेट्स, शुगर केन. कर्नाटका, स्पाइसेस, कॉफी, टी, बनाना, कोकोनट. केरला, रागी, कॉफी, कोकोनट, स्पाइसेस. मध्य प्रदेश, राइस, शुगर केन, कॉटन, कोकोनट. महाराष्ट्र, कॉटन, व्हीट, शुगर केन. मणिपुर, राइस, व्हीट, पाइनएप्पल, टोबैको. मेघालय, जूट, शुगर केन, ऑरेंजेस. मिजोरम, स्वीट पोटैटो, राइस. उड़ीसा, राइस, जूट, ऑयल सीड्स, पल्सेस. पंजाब, व्हीट, ज्वार, बाजरा, शुगर केन, ऑयल सीड्स. राजस्थान, व्हीट, मेज, ज्वार, ग्राम, कॉटन. सिक्किम, maize, millets, cardamom, oranges. Tamil Nadu, rice, sugarcane, tea, coffee, cotton, groundnut. Telangana, rice, cotton, sugarcane, tobacco. Tripura, rice, jute, sugarcane. Uttarakhand, rice and maize. Uttar Pradesh, wheat, gram, rice, cotton, sugarcane. And West Bengal, rice, jute and tea. Now let's do the words to remember. Beverage is any potable liquid as tea, coffee, beer or milk. Harvest, the process of gathering ripe crops from fields. Let us recall, agriculture is the production of food and goods through farming. Kharif seeds are sown in June with the arrival of monsoon. Fruits and vegetables are grown in nearly every part of the country. Now let's do the tick the correct option. Which of the following is called the backbone of Indian economy? Backbone of Indian economy is agriculture. Spices are widely grown in Kerala. The king of fiber is called cotton. Which of the following is called the golden fiber? Jute. And rabi crops are harvested in the month of March and April. Now let's do the fill in the blanks using the words given in box. Dash is an agriculture country, India. Dash is the most important food crop of India, that is rice. Dash is known for its spices. Spices के लिए हम mainly होता है Kerala. Dash is used to make jaggery, that is sugarcane. And apples are grown in Jammu and Kashmir. Now let's do match the following. Tea, that is in Assam. Spices in Kerala. Wheat is in Uttar Pradesh. Sweet potato is in Jharkhand. And ragi is in Mysore. Now let's do take the correct and cross the incorrect statement. Gram, moong, arar, arsoor are pulses. Correct. Tea is the most popular beverage. Correct. Jute is mostly grown in Uttar Pradesh. Correct. Seeds of rabi crops are sown in June and July. That is false. And spices lend flavor and color to our food. That is correct. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again and we'll meet in the next video with the next chapter. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.